Very good morning, dear teachers. This session is going to be very important for you because in this session we are just going to cover about the communication skill. Especially I will focus on communication skill in English. As you all know that in all English medium schools there is a first priority on the English. We always emphasize over English communication because whenever the parents send their children in any English medium school, they always want their children to speak English. And their expectation is not bad, I think. So, we will discuss over how to improve the English communication of students. As I know, definitely you all are very good in English. This session is not for you. Mind you, this session is not for you. This is for the children, how to make them speak English. That is what I will have to focus over there. Okay? So let us start now. I will today sum up present indefinite tense. In present indefinite tense, if I teach you simple sentence, negative sentence, then interrogative sentence, it will take long time. But the way I am just going to teach you is very smart way. I will ask you questions starting from do you and don't you. Let me speak in Hindi because audience are also just watching it and they must understand each and everything clearly. So let's speak in Hindi. मैं आप लोगों को डू यू और डोंट यू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पूछूंगा. डू यू और डोंट यू से स्टार्ट सेंटेंस कैसे होते हैं एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा. पहले आपका डू यू या डोंट यू स्टार्ट होगा. हिंदी में जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, क्या आप रोज़ सुबह उठते हैं, क्या आप जानवरों से प्रेम करते हैं, क्या आप अपना ब्रशअप करते हैं, क्या आप रोज़ स्नान करते हैं, ढेर सारे सेंटेंस बनेंगे. और क्या नहीं करते हैं, ठीक है, क्या आप रोज़ स्नान नहीं करते हैं, क्या आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस इससे बनेंगे. तो पहले हम क्वेश्चन जो पूछेंगे वो डू यू या डोंट यू से स्टार्ट होगा. क्या आप करते हैं, क्या आप नहीं करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जस्ट लाइक डू यू. रिस्पेक्ट वर्ब हो गया. योर एल्डर्स या योर टीचर्स, तो ये सेंटेंस बन गया क्या आप अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं. आपको जवाब देना होगा यस आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स. डू यू कुक योर फूड योर सेल्फ, क्या आप अपना खाना खुद बनाते हैं. यस आई कुक माई फूड माई सेल्फ. गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत ये सोच के बोलना है आपको. आप गलती जानबूझ के करिएगा, ये सोच के करिएगा कि बच्चे कर रहे हैं. ठीक है, आपको परफेक्ट जवाब मैं आपसे नहीं चाहता हूँ. ठीक है, क्योंकि आपको क्लास में इसको प्रैक्टिस कराना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. I will ask the first question to Vinod sir. Okay? Sir focus करें. Question है, do you teach your students properly? Yeah, I teach my students properly. अब आप लोग समझिए इसका मतलब हुआ कि क्या आप अपने बच्चों को सही से पढ़ाते हैं. तो इन्होंने कहा यस मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू गिव प्रॉपर होमवर्क टू योर स्टूडेंट्स. Yeah, I give my students proper homework. वेरी गुड. इन्होंने कहा आई गिव प्रॉपर होमवर्क टू माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को सही ढंग से होमवर्क देता हूँ. ठीक है, प्लीज टेक योर शीट. प्लीज. नाउ द क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू दिलीप सर. डू यू वांट टू मेक वीडियोज for your children? Yes, I do want make video our children's. Very good. Yes, I want, या I do want मतलब पक्का चाहता हूँ to make video for my students. इन्होंने जवाब दिया yes, I do want to make videos for my students, यानी मैं निश्चित ही बनाना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए. ठीक है, वीडियोज़. वेरी गुड दिलीप सर, प्लीज टेक योर शीट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to Mr. Harshit sir. Harshit sir, do you respect
योर पेरेंट्स? Yes, I respect my parents. Very good. Please take your sheet. Thank you, sir. Next question is going to be with Anjali ma'am. Do you want to be a successful person in your life? Yes, I do. I want to become a successful person in my life. Very good. अंजलि मैम ने बोला yes, I do. आपका जवाब यहाँ बताना चाहूँगा कि इतना भी पूरा हो गया। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, अगर यस आई डू आप बोल देते हैं तो हमने कितना बड़ा क्वेश्चन किया था, इससे मतलब नहीं होता है। और अगर आपने सिर्फ कह दिया नो आई डोंट, तो वहीं पर आपकी बात खत्म हो जाती है, यानी आपको पूरा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, पूरा जवाब क्या हुआ? यस आई डू वॉन्ट या यस आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। वेरी गुड, प्लीज टेक योर शीट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी विद पूनम मैम। डू यू टीच योर स्टूडेंट्स विद लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस? Yes, I do. Very good, smart answer. She does because she said that yes I do, and it means I mean to say the answer is right answer is okay. I want to teach my students with learning by doing process. Now next question is going to be, what is your good name please? Sir, Shraddha Sarma. Shraddha ma'am. Okay. Do you come daily? Yes, I am. Yes, I come daily. Daily. Okay, please. Do you always come late? क्या आप हमेशा लेट आती हैं? No, sir. No, I don't come late. Come late. No, I don't come late. No, I don't come late. Very good. Please sit down. So, I will ask the regular questions, and I want all my audience to just think over the answer. The question is in process, so let's proceed now. Next question, Vinod sir. Do you remember your childhood days? Yeah, I remember my childhood days. Very good. Please take a sheet. Do you love animals? Yes, I love animals. Very good. Do you like pizza? Yes, I like pizza. Do you hate the poor? No, I don't hate the poor. यहाँ पर इसका मतलब हुआ, मैंने पूछा क्या आप गरीबों से घृणा करते हैं? डू यू हेट द पुअर? द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग। अगर कोई आपसे पूछता है कि द इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या अंतर है, तो इसका मतलब समझ लीजिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज एन लैंग्वेज, और द इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेज लोग। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? डू यू हेट द पुअर? ठीक है, यहाँ पुअर्स भी नहीं बोलना है, द पुअर बस। डू यू हेट द पुअर? ओके प्लीज। डू यू पूनम मैम, डू यू लव चिल्ड्रेन? Yes, I love children. Very good. Now, next question. Do you feel good while teaching? Yes, Yes, I do. I do. Do you feel good while teaching? क्या आपको पढ़ाते समय अच्छा लगता है? इसका मतलब हुआ, तो आंसर क्या होगा? यस आई फील गुड वाइल टीचिंग। वाइल टीचिंग मतलब होता है पढ़ाते समय, वाइल गोइंग मतलब जाते समय, वाइल रीडिंग मतलब, ठीक है, पढ़ते समय। वेरी गुड, प्लीज टेक योर शीट। डू यू फील कोल्ड इन द विंटर? Yes, यस आई डू। I do. डू यू फील कोल्ड इन द विंटर? इसका मतलब हुआ क्या आपको जाड़े में ठंडी लगती है? ऑब्वियस सी बात है, सबको ठंडी लगती है। एक और आप लोगों को, इधर हमारी तरफ मुंह करेंगे कैमरे का, एक और चीज़ आप लोगों को बताएं। अब मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक सेंटेंस पैटर्न, टेक योर शीट, यस यस यू मे टॉक। पर्टिकुलर एक सेंटेंस पकड़ता हूँ, सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। डू यू वांट एक पैटर्न हो गया, दूसरा हो गया डू यू लाइक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डू यू वांट से, ठीक है। डू यू वांट में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और एक पैटर्न और मैं आपको बताऊंगा, डू यू फील लाइक। जब कभी आपको कहना हो क्या आपका मन है, तो क्या आपका मन है कि अंग्रेजी यहाँ से कुछ बनेगी नहीं, सिर्फ डू यू फील लाइक के बाद जो है बोल दीजिए, ठीक है। जस्ट लाइक डू यू फील लाइक कोल्ड, अगर हमने बोल दिया सिर्फ, तो इसका मतलब क्या आपको ठंडी लग रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें डू यू फील लाइक टेकिंग टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या आपका चाय पीने का मन है। यस आई फील लाइक टेकिंग टी, ये बनता है। डू यू वांट, क्या आप चाहते हो, ठीक है।
तो डू यू वांट में आप लोग अब क्वेश्चन करेंगे और आंसर मैं, क्या आप चाहते हैं पे आपको प्रश्न बनाना है हिंदी में, जवाब मेरा होगा। अब हमारे ख्याल से आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल, हम चाहते हैं आप हमको परेशान करें, ठीक है, या क्या आपसे कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो आप प्रश्न कर सकते हैं। कैमरे पे लाइव हूँ, ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं तो मैं भी सॉरी बोल दूंगा, ठीक है। क्या आप करते हैं, क्या आप कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्या आप अमीर आदमी बनना चाहते हैं, क्या आप जानवरों से प्रेम करते हैं, क्या आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या आप सफल आदमी बनना चाहते हैं, क्या आप करके आप कुछ भी बना सकते हैं, या क्या आप ये चीज़ नहीं करते हैं। तो मे आई स्टार्ट नाउ, आर यू रेडी गाइज? हैं, कैमरे का मुंह उधर करें सर, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन करेंगे मैं आपके बगल में ही आपको जवाब दूंगा। क्या आप ठंडी के मौसम में चाय पीना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टेकिंग टी इन द विंटर सीजन? लेट मी रिपीट, डू यू लाइक टेकिंग टी इन द विंटर सीजन? क्या आप ठंडी के मौसम में चाय पीना पसंद करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानवर से प्यार करते हैं? डू यू लव एनिमल्स? इसका मतलब हुआ डू यू लव एनिमल्स, क्या आप जानवरों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं? यस, आई डू लव विद एनिमल्स। नाउ हर्षित सर प्लीज। सर क्या आप घूमना पसंद करते हैं? डू यू लाइक वॉकिंग या डू यू लाइक ट्रेवलिंग? यस, आई डू लाइक ट्रेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको सर्दी का मौसम पसंद है? डू यू लाइक विंटर सीजन? अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, प्लीज से सम डिफरेंट क्वेश्चन। क्या आपको संगीत पसंद है? डू यू लाइक सॉन्ग्स या डू यू लाइक म्यूजिक? यस, आई डू लाइक म्यूजिक। सर क्या आप सर्दियों में शिमला जाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू, हालांकि ये करेंगे इन्होंने बोल दिया तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, बट ये डू यू का नहीं है। वुड यू लाइक टू गो टू शिमला इन विंटर सीजन, ठीक है, वुड यू लाइक टू गो बोलना पड़ेगा, जाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू गो, ठीक है, टू शिमला इन विंटर? यस, आई डेफिनेटली लाइक। ओके, प्लीज टेक योर सीट। सर क्या आप खाना बनाना पसंद करते हैं? डू यू लाइक कुकिंग फूड? यस, आई लाइक कुकिंग फूड। सर क्या आपको फल खाना पसंद है? डू यू लाइक ईटिंग फ्रूट्स? यस, आई डू लाइक ईटिंग फ्रूट्स। अब मेरा फिर टाइम स्टार्ट होता है, मैं हिंदी में पूछूंगा, आपको अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। देखिए मैं ये सब इसलिए करा रहा हूँ, आप क्लास में कर सकते हैं ये सब, ठीक है, कराने का मकसद सिर्फ यही है। इसके बाद फिर एक बच्चा 3 बच्चों से पूछेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को आपको लगातार बोर्ड पे लिखते रहना है, ज़्यादा ना समझ में आए तो 10 क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए कि आज ये 10 क्वेश्चन बच्चों को पूछना आ जाएगा और जवाब देना आ जाएगा, ठीक है। क्या आपको अपने बचपन के दिन याद हैं? डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड डेज? डेज? वेरी गुड, सिट डाउन। क्या आप अपने जीवन में एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? Do you want to become in success your life? बिजनेसमैन इन योर लाइफ। Life. डू यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ? प्लीज टेक योर शीट। क्या आप कभी अपने माँ बाप को अपना वैल्यूएबल समय देते हैं? डू यू गिव your valuable time to your parents? Do you give your valuable time to your parents? Please take a seat. क्या आप रोज ब्रश अप करती हैं? डू यू ब्रश अप डेली? वेरी गुड। क्या आप रोज स्नान करती हैं? डू यू बाथ डेली? Do you take bath daily? डू यू टेक बाथ डेली? Please sit down. क्या आप अपने कपड़े स्वयं धोती हैं? यस आई डू वॉश। नहीं, आंसर नहीं देना, आप क्वेश्चन का आंसर बताना है, मतलब क्वेश्चन का अंग्रेजी बताना है। डू यू वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ? बोलिए, डू यू वॉश योर क्लोथ्स डू यू वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ? योरसेल्फ? प्लीज सिट। क्या आप चाय बनाती हैं? डू यू मेक डू टी? यू मेक टी? वेरी गुड। देखिए मैं, या तो आप हमसे पूछेंगे या तो हम आपसे पूछेंगे, हमारे पास श्रृंखला बहुत लंबी है, ख़त्म होने वाले नहीं, तो या तो मैं कैरी ऑन करूँ या तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा उसी समय हाथ उठा दीजिएगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम।
कैरी ऑन करूं? ठीक है, ये वीडियो बन रहा है और इससे फ़ायदा होगा, ठीक है, हमारे दर्शकों को भी, हमारे बच्चों को भी, या आप लोगों को भी, क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही को देने जा रहा हूँ। दिस इज़ टीचर ट्रेनिंग सेशन, ओके। क्या आप अपने जूते पॉलिश खुद करते हैं भाई साहब? डू यू पॉलिश Do you polish your shoes Yourself. yourself? अगर इसका जवाब देना हो तो क्या देंगे? यस, आई पॉलिश माई शूज माई सेल्फ। ठीक है, आप जवाब विनोद सर दे रहे हैं, ठीक है, Yes, I polish my shoes myself. वेरी गुड। देखिए इसमें, देखिए क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला, मैंने पूछा डू यू पॉलिश योर शूज, यू का अपना योर होता है और योर सेल्फ मतलब खुद, यू का अपना मतलब खुद अगर हो, यू का खुद योर सेल्फ है, आई का अपना माई है या माई शुद्ध अंग्रेजी में बोलेंगे, और आई का खुद जो है माई सेल्फ है। यस, आई पॉलिश माई शूज माई सेल्फ। प्लीज टेक योर शीट। नेक्स्ट इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है। डू यू कॉम योर हेयर डेली? क्या आप अपना बाल रोज झाड़ते हैं? Yes. लेकिन हमने क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं माना जाएगा आपको क्वेश्चन। मैं आपको हिंदी पूछूंगा ना, हिंदी पूछ रहा था ना? नहीं, हम हिंदी पूछ रहे थे, आपको अंग्रेजी बताना था, ये कर रहे थे भाई हम। और मैंने कहा था आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हिंदी पूछ लीजिए, मैं उसकी अंग्रेजी बता दूंगा। मैं नहीं कंफ्यूज, डोंट मेक मी कंफ्यूज। मैं हिंदी पूछूंगा, मैं फिलहाल मैं हिंदी पूछ रहा हूँ, आपको अंग्रेजी बतानी है, ठीक है? क्या 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 आप अपने विरोधियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं? डू यू टेक एक्शन Do you take action अगेंस्ट योर against your ओपोनेंट्स? opponents? ठीक है, प्लीज टेक योर शीट। क्या आप अपने विरोधियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं? ठीक है, क्या FIR लॉन्च कराते हैं पुलिस स्टेशन में जब आपको कोई परेशान करता है तो? नो आई डोंट। ठीक है, इसका जवाब सुन लीजिए। अब यहाँ पर बहुत खतरनाक मेरे मुंह से निकल गया है तो अंग्रेजी बतानी पड़ेगी। FIR लॉन्च करने के लॉन्च FIR होता है LODGE, लेकिन यहाँ मैंने करवाना बोल दिया तो और ख़तरनाक अंग्रेजी बन गई। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू यू गेट FIR लॉन्च्ड इन द पुलिस स्टेशन व्हेन समबडी हर्ट्स यू या समबडी पजल्स यू। व्हेन समबडी पजल्स यू, जब आपको कोई परेशान करता है तो डू यू गेट FIR लॉन्च्ड इन पुलिस स्टेशन। यहाँ पर करवाना क्या हो गया, ये है आपका थोड़ा सेंटेंस पैटर्न दूसरा हो जाता है, इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? अब लेकिन मैं पूछूंगा और नहीं होगा तो बताऊंगा, ठीक है? क्या आप अपने बच्चों को अंग्रेजी बुलवाना चाहती हैं? Do you want to speak English to your children? हाँ, अब यहाँ पर देखिए मैम ने बोला डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है? तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा कि क्या आप डू यू वांट टू स्पीक मतलब क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। यहाँ जबकि बुलवाने की बात कही थी, तो यहाँ करना क्या है, डू यू वांट टू मेक योर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। क्या होगा, डू यू वांट टू मेक योर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। या दूसरा तरीका है, क्या आप चाहते हैं, पहले ऐसे डू यू वांट के बाद वो आप चीज़ रख दीजिए जिससे करवाना चाहते हैं। एक पैटर्न ये भी है, डू यू वांट योर किड्स टू स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लोग भी ध्यान दीजिए। डू यू वांट योर स्टूडेंट्स, क्या आप अपने बच्चों को चाहते हैं टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। और अगर हमें कहना है कि क्या आप अपने बच्चों को अंग्रेजी बुलवाना चाहती हैं, तब तो मजबूरी पड़ जाती है, तो डू यू वांट टू मेक योर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, ठीक है? ये दो पैटर्न हो गया। अब बात आ ही गई है तो इसी पैटर्न पे मैं थोड़ा सा और आपको क्लैरिफाई करते हुए इसी तरह का सेंटेंस और पूछता हूँ प्लीज़। जैसे मुझे पूछना हो कि आप चाहती हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, ध्यान दीजिए, तो ये बड़ा सेंटेंस बन जा रहा है टफ, लेकिन है कुछ नहीं। डू यू वांट के बाद मुझे लगा दीजिए, क्या डू यू वांट मी, डू यू वांट मी टू हेल्प यू, ठीक है? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं? डू यू वांट टू मीट, डू यू वांट मी, डू यू वांट मी टू हेल्प यू, डू यू वांट मी टू हेल्प यू। यस, ठीक है, समझ में आ गया ना? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प, डू यू वांट मी टू हेल्प यू। थोड़ा सा मैं कठिन की तरफ जा रहा हूँ, सरल से कठिन की ओर, ठीक है? नहीं तो बोरिंग आपको लगेगा कि ये तो वही हर बार
चले जाते हैं ले करके सरल वाला, और इतना हम पढ़, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा काफ़ी सालों से सेक्टर में हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, पैटर्न बदल रहा हूँ बार बार, जिससे आपको कुछ नयापन भी लगे। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें? डू यू वांट टू डू यू वांट बात किसको चाहते हैं आप? किड्स। डू यू वांट टू माई स्टूडेंट्स हाँ, डू यू वांट योर स्टूडेंट्स, डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम? प्लीज सिट डाउन। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ फिर से आपको समझाना चाहूँगा मैं बना कैसे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जरा बोर्ड की तरफ दिखाइए आप। ये सेंटेंस पैटर्न आप सीख लीजिए सभी लोग, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्मार्ट सेंटेंस पैटर्न है। यहाँ पर चल क्या रहा है? डू यू वांट के बाद किससे चाहते हैं आप? मुझसे चाहते हैं तो डू यू वांट मी। क्या आप उससे चाहते हैं? डू यू वांट हिम। क्या आप लड़की को ही उससे चाहते हैं? डू यू वांट हर। क्या आप दिलीप सर से चाहते हैं? डू यू वांट दिलीप सर। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर टू, अब क्या कराना चाहते हैं? क्या मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जस्ट लाइक अगर क्या मैं आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊं तो डू यू वांट मी टू टीच यू। यहां वर्ब, डू यू वांट मी टू टीच, ऑब्जेक्ट हो गया यू आपका। यहां पर क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस पैटर्न बन रहा है। डू यू वांट मी टू टीच यू। डू यू वांट योर स्टूडेंट्स, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें? तो डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी बोलें? डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या आप चाहते हैं अनिल सर आपकी हेल्प करें? डू यू वांट अनिल सर टू हेल्प यू। ये सेंटेंस पैटर्न पकड़ में आ गया ना? दूसरा जो आपका है बुलवाना वाला, करवाना वाला, बहुत लंबा वाला तो नहीं जाऊंगा। देखिए मैं हल्का सा आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, इसलिए हल्का सा मैं आज आपको हिंट दे करके समझा दे रहा हूँ। क्योंकि अगर क्वेश्चन बन ही गया है तो कैसे बन रहा है देखिए, एक होता है करना, एक होता है कराना, एक होता है करवाना। ठीक है, आपको सिंपली जब आप खुद करते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक, देखिए मैं समझाता हूं। या आई स्पीक छोड़िए, मैं बोलता हूं। ठीक है, मैं बुलवाता हूं, तो बुलवाता हूं, मैं आपको बुलवाता हूं, मैं आपको बुलवाता हूं। तो यहां क्या होगा? मेक, किसको बुलवाता हूं? आपको। स्पीक, ठीक है। अगर मैं कहता आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, तो जहां ये स्पीक था, स्पीक की जगह मेक यू स्पीक हो गया। ध्यान दीजिए आप, मैं आपको बुलवाना चाहता हूं ना, तो मेक यू स्पीक किया मैंने। यहां क्या होगा? आई वांट टू स्पीक की जगह क्या हो जाएगा? मेक यू स्पीक, मैं आपको बुलवाना चाहता हूं। मेक और जिसको बुलवाना हो वो ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वांट टू मेक यू स्पीक बन गया ना कि नहीं? यहाँ आई वांट टू मेक यू स्पीक। अगर आपको यही चीज, मैं आपको अंग्रेजी बुलवाना चाहता हूं, तो आई वांट टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। बन गया सेंटेंस? नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बोलना है अब लर्न, क्या बनेगा? टू मेक यू लर्न। अब मुझे आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं, क्या हो जाएगा? यस, ठीक है, आई वांट टू मेक यू लर्न इंग्लिश। क्लियर हुआ ना? तो मेक यू, अगर मान लो आपको इंपरेटिव सेंटेंस होता तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए। लाफ,
लाफ मतलब क्या हो गया? हंसो, हंसो या हंसिए, ठीक। डोंट लाफ, मत हंसिए, डोंट लाफ, मुझे मत हंसाइए, ध्यान दीजिए। डोंट लाफ की जगह मेक मी लाफ हो जाएगा। मुझे हंसाइए, मेक मी लाफ, मेक मी लाफ, ठीक है, मेक मी। अब यहाँ चीज बताना चाहता हूँ आपको, कुछ चीज़ की अंग्रेजी पहले से बनी है, जैसे मुझे पढ़ाइए तो मेक मी रीड करने की जरूरत नहीं है, अगर टीच ना होता अंग्रेजी में, ध्यान दीजिए। सिखाइए कि अंग्रेजी नहीं है, डोंट मेक मी लर्न, मुझे मत सिखाओ। लेकिन सिखाओ कि अंग्रेजी नहीं है तो हमने मेक मी लर्न लगा लिया। पढ़ाओ की अंग्रेजी है तो टीच कहना पड़ेगा डायरेक्ट आपको। खिलाने की अंग्रेजी फीड है तो डोंट मेक मी ईट मत कहिए आप, फीड है, फीड मतलब खिलाना होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? नहीं, जिसकी अंग्रेजी नहीं है वहाँ पर हम, जब दो पार्टी होती हैं, एक मैं एक आप या जो भी है, दो पार्टी हैं यहाँ पे, मुझे मत हंसाओ, तो जाहिर सी बात है मैं जब जिससे कह रहा हूँ मुझे मत हंसाओ, जब मैं कह रहा हूँ तो मैं हूँ और एक आदमी और है, दो ही पार्टी है ना, ठीक है। तो यहाँ मेक और जिससे कराना है वो और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गए सबके? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं है, फिर समझ में आएगा। हालांकि मैं यहाँ टॉपिक से थोड़ा सा भटक गया हूँ, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, लेकिन हल्का से छेड़ दिया है मैंने। तो यहाँ दो पार्टी मैंने समझाया कि ये होता है मेक। वर्ब की जगह आपको क्या करना है, जहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे कोई भी, उसकी जहाँ मेक ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जा रही, बस, ठीक है। जैसे आई वांट टू स्पीक, स्पीक की जगह क्या हो गया? मेक यू स्पीक, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हुआ। अगर तीन पार्टी हो तो क्या होगा, तब थोड़ा बदल जाएगा। मैं आपको पिटवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर तो मैं हूँ, आप हैं, एक और आदमी है जिससे पिटवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वही जो वर्ब जो वर्ब थी उसकी जगह अब क्या चलेगा? गेट ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म चलती है। जैसे मैं कहूँ आई वांट टू बीट यू, तो मैं आपको पीटना चाहता हूँ, और आई वांट टू गेट यू बीटन, तो मैं आपको पिटवाना चाहता हूँ। अगर दो पार्टी हैं तो मेक ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर तीन पार्टी हैं तो गेट ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं अपना बाल कटवाना चाहता हूँ, तो मैं पार्टी हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ। दो पार्टी तो हमेशा रहती है, क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कोई आदमी है, ऑडियंस है, मौके पे ना भी हो दो तो हमेशा रहना ही, नहीं तो बात ही कहाँ से होगी। तीसरी पार्टी की तब बात आती है, ठीक है, जब कोई चीज़ आप करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट माई हेयर, ट्रिम्ड भी कह सकता हूँ, या आई, जैसे मैंने स्मार्ट सेंटेंस बताया था, ठीक है, या आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर ट्रिम्ड, आई वॉन्ट टू। अगर ट्रिम माई हेयर बोल देता तो मैं काटना चाहता हूँ। देखो कट भी बोल सकते हैं, लेकिन कट से ज़्यादा ट्रिम अंग्रेजी होती है, क्योंकि बाल को ट्रिम किया जाता है। कट बोल सकते हैं, लेकिन कट तो बहुत जगह यूज़ किया जाता है। ट्रिम का मतलब ऐसे ऐसे कच्चू 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 काटा जाता है, ठीक है, तो ट्रिम कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे नाखून काटने के लिए ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी पेयर है, PARE, ठीक है, PA। जैसे हम कहें अपना नाखून काट लो तो क्या बोलेंगे? पेयर योर नेल्स, ठीक है। अगर कटवा लो तो गेट योर नेल्स पेयर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। खैर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, फिर से आता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं आपको डू और डोंट से बनने वाले सेंटेंस, ठीक है। क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं? बताइए अंग्रेजी। अब आपसे मैं सबसे पूछूंगा, कोई भी बता सकता है, ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। आपको हाथ उठाना होगा, यू हैव टू रेज अप योर हैंड एंड आई विल कम टू यू, अदरवाइज आई विल आंसर डायरेक्टली। क्वेश्चन मेरे होंगे, जवाब मेरे होंगे। इफ़ यू वांट टू टेल देन कैमरा विल मूव टुवर्ड्स यू एंड यू विल हैव टू आंसर, ओके।
क्या आप मुझे पहले सर मेरी तरफ ही करिए, नहीं तो आवाज़ नहीं जाएगी। मेरी तरफ है ना? हाँ, जब कोई कहेगा, जब रेज करेगा हाथ, तब उसकी तरफ जो है, ठीक है, कैमरा का मुंह होगा और वो पूछेगा। क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं? डू यू नॉट रिकॉग्नाइज मी? वेरी गुड, बिग हैंड्स फॉर हिम। प्लीज टेक योर सीट। अब आपको मैं बताता हूँ, तरीका बहुत आसान है। देखो, डू यू नॉट में बहुत लंबा चला जाएगा, आप सीधे डोंट यू बोल दो, ग्रामेटिकली भी सही है। जब कोई चीज़ नहीं करते हैं तो डोंट यू बोल देना, क्योंकि मैं आपको यही डू यू और डोंट यू पढ़ा ही रहा हूँ, तो क्वेश्चन ही आपका 2 ही तरीके से बन सकता है आपके पास, तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? क्या आप मुझे नहीं पहचानते हैं? डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? सर कोई बताएगा? कोई भी नहीं, कोई भी। हाँ ठीक है, मूव टुवर्ड्स अंजलि मैम। Don't you like me? फिर से। Don't you like me? वेरी गुड, बिग हैंड्स फॉर हर। डोंट यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? अरे क्वेश्चन है, मतलब हम पूछ नहीं रहे हैं आपसे आंसर, आपको तरीका समझा रहे हैं, ठीक है? क्या आप अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं करते हैं? कोई भी, हाँ। डोंट यू लव योर स्टूडेंट? वेरी गुड, बिग हैंड्स फॉर पूनम मैम। क्या होगा? डोंट यू लव योर स्टूडेंट्स, क्या आप अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं करते हैं? करते हैं तो डू यू, और नहीं करते हैं तो डोंट यू ना। क्या आपको याद नहीं है? क्या आपको वो दिन नहीं याद है जब हम पहली बार मिले थे? कोई बताएगा? हाँ हाँ, फिर से अंजलि मैम बताने जा रही हैं। Don't you remember those day when we meet first time? ओके, बिग हैंड्स फॉर हर। थोड़ा सा करेक्शन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है, ठीक है, हल्का सा करेक्शन है बस। डोंट यू रिमेंबर दोज डेज भी बोल सकते हैं, या नहीं तो स्मार्ट सेंटेंस में डोंट यू रिमेंबर द डेज सीधे बोल दीजिए। डोंट यू रिमेंबर द डेज, व्हेन भी नहीं लगाने की जरूरत है, और स्मार्ट हो जाएगा। डोंट यू रिमेंबर द डेज वी मेट फर्स्ट, वी मेट, मीट का सेकंड फॉर्म जाएंगे, मिले थे पहली पास्ट, तो यहाँ पर स्मार्ट व्हेन भी लगा सकते हैं, लेकिन और स्मार्ट करेंगे तो व्हेन भी खा जाइए आप। जब बीच में इस तरह से आता है तो स्मार्ट सेंटेंस में ऐसे कर देते हैं। आपको बता दे रहा हूँ, डोंट यू रिमेंबर द डेज वी मेट फर्स्ट, ठीक है? या डोंट रिमेंबर, अगर समय, डोंट रिमेंबर द टाइम वी मेट फर्स्ट, ठीक है? या डोंट रिमेंबर द प्लेस, क्या वो जगह आपको याद है जहाँ हम पहली बार मिले थे? डोंट रिमेंबर द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, लेकिन वेयर खाना चाहें तब भी हो सकता है। डोंट रिमेंबर द प्लेस वी मेट फर्स्ट भी बोल देंगे तो स्मार्ट सेंटेंस और ज़्यादा बन जाता है, वो भी सही माना जाता है, ठीक है? ये क्लॉज का चक्कर है। क्लॉज में स्मार्ट सेंटेंसेस की जब हम कैरी ऑन करेंगे, कभी फिर चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर कैसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा इस पर और मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसको कहते हैं चुल बढ़ाना, मतलब आकांक्षा बढ़ाना, ठीक है? थोड़ा सा टफ की तरफ बढ़ता हूँ, हल्का सा घुमा फिरा करके पूछता हूँ, बताना मुझे ही है, या आप भी, मैंने आपको खुली दे दिया है चुनौती, या आप सरेआम मुझे बेइज्जत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है? मेरा अपना यही स्टाइल है, और नहीं आता तो मैं बहुत बेशरम आदमी हूँ, बोल देता हूँ नहीं आता है, बाद बताऊँगा, ठीक है? ये बात है। वैसे भगवान की दया से 80-90%, 99% तक मैं बता देता हूँ, कुछ भी आपके दिमाग में आएगा बता दूँगा, ठीक है? क्या आपको पता है तो अंग्रेजी क्या होगी, आप लोग बताइए? डू यू नो। अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा प्यारा सेंटेंस पैटर्न बनता है, हाउ टू, ठीक है? अब मैं आपसे कहूँ डू यू नो हाउ टू मेक टी, तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, क्या आपको चाय बनाना आता है, मतलब कुल मिला जैसे भी बोला, अंग्रेजी हिंदी में चाय जैसे हो, क्या आप जानते हैं कैसे चाय बनाई जाती है? क्या आपको चाय बनाना आता है? मैं हाउ टू, व्हाट टू, वेयर टू को यहाँ पर कैसे जोड़ा जाता है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ बस, ठीक है? इस तरह का सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है? क्या आप जानते हैं आज क्या करना है भाई? तो डू यू नो व्हाट टू डू टुडे, व्हाट टू, हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू यू नो, डू यू नो, ठीक है? क्या आप जानते हैं कि मटर पनीर कैसे बनाते हैं? कोई बताइए, डू यू नो?
चलिए ये बोल नहीं, आप ही बोल दीजिए. Do you know how to make matar paneer? वेरी गुड, बिगेन्स फॉर अंजलि मैम. डू यू नो हाउ टू मेक मटर पनीर? ठीक है. यहाँ पे मेक लगे सर, कुक लगेगा. सर देखिए मेरी बात समझिए, बहुत ज़्यादा डीप मत जाइए इसमें, ठीक है. मेक मतलब बनाना, कुक माने पकाना, प्रिपेयर माने तैयार करना. शुद्ध हिंदी होती है, आप सेंस में बोल सकते हैं सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं उससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है. ठीक है. बना बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब चलेबल है. चलेबल की अंग्रेजी क्या होगी वैसे? डूएबल. डूएबल, डूएबल. ठीक है, ठीक है, मतलब चलेगा. अगर चलेगा अंग्रेजी बोलना हो तो क्या बोलेंगे? इट विल डू. इट विल डू, चलेगा. ठीक है, इट विल डू. या सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बोले विल डू. यस यस, विल डू, चलेगा चलेगा. ठीक है, समझ में आया ना? क्या आप जानते हैं कि कार कैसे चलाते हैं? मतलब क्या आपको कार चलाना आता है? या चाहे जैसे हिंदी कुछ भी हो सकती है. क्या आपको कार चलाना आता है, या क्या आप जानते हैं कार कैसे चलाते हैं? ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी Do you know how to drive car? वेरी गुड. बिगेन्स फॉर आरसी सर. क्या होगा? डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार? भैया कैमरा चल रहा है ना? हैं? हाँ, नहीं तो गूगली हो जाए. बड़ी मेहनत से बनाते हैं वीडियो. ठीक है. सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हमने सिखाया कि डू यू डोंट यू से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और उसका जवाब कैसे देते हैं. लेकिन आपको मैं एक सुझाव देना चाहूँगा. सपोज़ करिए क्वेश्चन अगले वाले आदमी ने, आपके सामने वाला आदमी जो है क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन बड़ा लंबा कर दिया उसने और आपके समझ में सिर्फ इतना आया कि वो कह क्या रहा है और जवाब आप नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो प्यारा सा जवाब है. अगर हाँ है तो यस आई डू, और नहीं है तो नो आई डोंट. समझ में आ गया सबके? हैं? जस्ट लाइक सपोज करिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ. ठीक है. डू यू नो हाउ टू मेक द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेक देम लर्न ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली सो दैट दे कैन बिकम द गुड सिटीजन ऑफ इंडिया? अब इतना लंबा क्वेश्चन हम कर दिए, आप समझ रही हैं कि हाँ हम करते हैं, तो यस आई डू, बात खत्म करो. हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन कर डालें, ठीक है, मतलब है आप समझ रहे हैं कि आप हम पूछ क्या रहे हैं. होता क्या है, कभी कभी हम जवाब उतना लंबा, ठीक है, नहीं दे सकते हैं, तो यस आई डू, और नहीं तो नो आई डोंट. डू यू लाइक पिज्जा? जोर से बोलिए. यस आई डू बोलिए. अब यस आई डू बोलना है, नो आई डोंट. ठीक है, यस आई डू, नो आई डोंट. डू यू लाइक राइस? डू यू लाइक एनिमल्स? यस आई डू बोलना है जोर से भाई, बच्चों की तरह बोलना है. प्रैक्टिस सेशन है ये. हैं? डू यू हेट एनिमल्स? नो आई डोंट. ठीक है, अगर आप नो आई नेवर भी बोलें तो इसका मतलब है कभी नहीं. ठीक है, यहाँ चाहे तो बोल सकते हैं. और आई नेवर से जो सेंटेंस बनते हैं उसमें सिंपली आई नेवर लाइक, आई डू नॉट, डोंट कुछ नहीं होगा. जैसे सिंपल सेंटेंस बनता है वैसे नेवर बनता है. ठीक है ना? हाँ, यस प्लीज़ कम इन. सो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से आप इंतजार करिएगा, जिसमें WS से बनने वाले क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट.